جو پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی تنظیم ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، ان کو اس موقع پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ بڑے اچھے انداز سے کل ہم نے پورے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں گری خدا بخش میں ہوسٹ بھی کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی جلسہ ہوا جس پہ ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 17th ہوں کہ ایک تاریخی جلسہ ہوا جس پہ ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 17th اینیورسری کو، برسی کو، شہادت کی منائے ہیں، اور پاکستان کے عوام نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ 17 ایئرز گزرنے کے باوجود وہ آج بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نظریہ قائد عوام کی منشور کے ساتھ ہیں، اور ہم سب جو ان کے نمائندے ہیں، چاہے وہ صوبائی سطح پہ یا وفاقی سطح پہ، انہی کے منشور اور انہی کے نظریہ پہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یا ملک میں جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ پاکستان کے عوام معاشی صورتحال پہ پریشان ہیں، امن و امان کی صورتحال پہ پریشان ہیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ سیاستدانوں کی طرف، اپنے قائدین کی طرف، اپنے نمائندے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے انا کے ذاتی ایشوز ایک طرف چھوڑ کے پاکستان کے یہ جو اہم مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دیں، تاکہ ہم مل کے ان مسائل کا مقابلہ بھی کر سکیں اور پاکستان کے عوام کی مشکلات میں کوئی کمی کا بندوبست کر سکیں۔ تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور ویسے تو میں نہیں خیال کہ آپ کے سارے سوال ہمارا اس تاریخی پانی کا منصوبہ کے بارے میں ہوگا، لیکن میں آپ کے سوال کا جواب سرکش صدایو صاحب KTN سرکش صدایو، میرا KTN نیوز سے تعلق ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سر، سندھ حکومت تو تیزی سے چھوٹے بڑے جو عوامی منصوبے ہیں وہ مکمل کر رہی ہے، کیا سندھ کی ترقی میں وفاقی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ دوسرا یہ کہ سر، آپ نے کل تقریر میں کہا تھا کہ وفاقی حکومت کو جو بڑے فیصلے ہیں وہ اکیلے کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو کیا وفاقی حکومت آپ کو آن بورڈ نہیں لے رہی ہے؟ جیسے ابھی سندھو دریا پہ شیخ کینال بنانے والا فیصلہ ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ۔ ویسے تو آپ کی جو پہلی سوال ہے، ہم تو کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیشہ سے ہمارا کوشش یہی رہا ہے کہ وسائل جتنے بھی ہو، بے شک کم بھی ہو، ہم کم وسائل میں سے زیادہ محنت کر کے اپنے عوام کے مسائل کے حل نکالنے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ اب یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جو چھوٹے صوبے ہیں، چاہے ہم حکومت میں ہوں یا ہم اپوزیشن میں ہوں، وفاق کا رویہ کچھ ایسا ہی رہتا ہے۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان معاہدہ ہوا، اور ہم نے اس حکومت سازی میں اس حد تک ساتھ دیا کہ ہم نے ان کے وزیر اعظم کو ووٹ دیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ نہ صرف اوبیسلی صوبوں کو ان کے حق تو ملنا چاہیے، میں اس کا یقین دہانی کے لیے ہم نے یہ آپس میں طے کیا کہ چاروں صوبوں کے جو PSDP ہے ہم اس کو مل کے بنائیں گے۔ جب وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکا تو ہم سے وعدہ کیا گیا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت ان پٹ اس طریقے سے نہیں ہوا، تو ہم سے یہ وعدہ کیا کہ جو سندھ کے ترقیاتی منصوبے ہیں، جو بلوچستان کے ترقیاتی منصوبے ہیں، جو دوسرے صوبے میں یا وفاق کی سطح پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ان پٹ تھی، ان کو فنڈنگ دیا جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جو پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی بنیادوں
पे एक वादा किया गया उस पे पूरी तरीके से या सही तरीके से अमल दरामद नहीं हो रही, मगर जिस तरीके से वफाक को सूबों के साथ मिल के चलना चाहिए और जो सूबों को तमाम हक हो, चाहे वो सूबा सिंध हो, सूबा बलूचिस्तान हो, सूबा पंजाब हो, सूबा पख्तूनख्वा हो, उनको अपना हक देने चाहिए, वादे पूरा करना चाहिए। दोनों सिलसिले में हुकूमत के बेहतरी की गुंजाइश है। मेरा उम्मीद है कि जो हमारा ये शिकायत है इसको सीरियसली लिया जाएगा और एक मीनिंगफुल डायलॉग के नतीजे में हम जो सूबे के एतराज़ात है उनको भी दूर कर सकते हैं और जो सियासी वादे किए गए हैं उस पे भी अमल दरामद कर सकते हैं। जहाँ तक आपने मैंडेट की बात की, वो तो पार्लिमानी निज़ाम में तो आपके सामने है। हुकूमत की जो तरीक़ाकार है, चाहे वो पॉलिसी फॉर्मेशन हो या वो लेजिस्लेटिव अमल हो, उसमें मेरा ख्याल में या उनका ख्याल में शायद उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ में से तो कुछ उसमें से कुछ फ़र्क है और जो पार्लियामान में उनके स्ट्रेंथ है वो ऐसा नहीं है जैसे 90 के दहाई में जब उनके पास 2/3 अक्सरियत था या किसी और वक्त में। इस वक्त में उनको बाकी सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के इज्तिमाई फ़ैसले लेने के तो मैंडेट है। एक तरफ़ा फ़ैसला करना, वो भी ऐसे ही एक तरफ़ा फ़ैसला जो कि मुतनाज़ा हो, जो कि वोटर के जो एक बुनियादी हक है उसके ऊपर हो, जो इरसा अकॉर्ड के ख़िलाफ़ वर्जी हो, जो इरसा के ख़िलाफ़ वर्जी हो, 1991 की वोटर अकॉर्ड की ख़िलाफ़ वर्जी हो, जो कि आपके दूसरे सूबे के इख्तलाफात उस मीटिंग में भी उठाए जाए और उनके जो एतराज़ात हैं ऑन रिकॉर्ड उनको इग्नोर करते हुए आप किसी मंसूबे पे आगे बढ़ते जाएंगे, तो उसके लिए तो बिल्कुल ना मेरे ख़्याल में इनके पास मैंडेट है और यही तरीके से मंसूबे मुतनाज़ा होते हैं। अगर आपने कामयाबी से किसी चीज़ को हासिल भी करना है तो इत्तेफाक राय से मिल बैठ के बातचीत करके सबके जो नुक्ते नज़र है उनको समझने के बाद अगर कोई मंसूबा बनाया जाएगा तो वो कामयाब होगा। वरना एक ज़माने में किसी ने सोचा था कि वो कालाबाग डैम बनाएगा। आप मुझे बताएं वो डैम कहाँ है? वो भी एक तरफ़ा फ़ैसला था, ये भी एक तरफ़ा फ़ैसला है। उस ज़मानों में वो एक तरफ़ा फ़ैसला को हमने ही नाकाम करवाया और इंशाअल्लाह ताला आज के ज़मानों में भी, आज की सियासी सूरत हाल में भी जो एक तरफ़ा फ़ैसले होंगे उन पे अमल दरामद मुश्किल होगा। बाबू इकबाल ARY। मेरा सवाल है कि जिस तरह आपने कल बहुत सी चीज़ें वादे की तकरीब में अपने, ख़ासतौर पर की बात आपकी जो कैनाल निकाले जा रहे हैं पानी के खुश्क होने का, वो एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी में जो मैंने देखा उसमें सिंध में कालाबाग डैम पे एक अलग मौक़िफ़ था और पंजाब वाले जो थे वो कालाबाग डैम पे उनका अलग मौक़िफ़ था। क्या इन कैनालों के लिए पंजाब के आपकी जो भी क़यादत है या वर्कर है वो आपके साथ है? तो ये दूसरा ये कि गैस और लोड शेडिंग इनके भी आपने धरने लगवाए, पीपल्स पार्टी ने यहाँ लगाए, तो क्या अगर इतना बड़ा फैसला एक तरफा होगा धरने की तहरीक की कोई सियासत के चांसेस फिर होंगे या इस तरह ही बस एहतजाज चलता रहेगा? थैंक यू। तो पहले मैं आपकी थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करता हूँ और तारीख़ी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये गलत तासुर दे रहे हों कि पाकिस्तान या किसी एक सूबा का मौक़िफ़ एक था, किसी दूसरा सूबा का मौक़िफ़ कोई और था कालाबाग डैम के हवाले से। वहाँ एक एतराज़ात सिंध से शुरू नहीं हुए, वो पख्तूनख्वा से उठे और जो एहतजाज हुआ वो बिल्कुल हमने एक एहतजाज यहाँ बॉर्डर पे करवाया था, मगर उस एहतजाज के जो काफ़िले निकले जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध का सदर ने कराची से काफ़िला निकाला तो वहाँ ही
पंजाब का सदर जहांगीर ब्रदर ने पंजाब का काफ़िला निकाला और वो वफाकी एहतजाज था. इनफैक्ट जो पार्लियामान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ सूबे के नुमाइंदे थे, उन्होंने सिंध के मेंबरान से पहले आवाज़ उठाए थे कि आपने जो भी फ़ैसला करना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी एक सूबे की जमात नहीं है, हम वफाक की जमात है, हम वफाक परस्त है. हम समझते हैं कि जो भी फ़ैसला वफाक को कमज़ोर करेगा उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना रद्द-ए-अमल ज़रूर होगा. और इस सिलसिले में भी सारे मेरे ख़्याल में जितने सियासी स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ मैंने सुना है, किसी का इस किस्म की किसी सियासी जमात यकतरफ़ा फ़ैसले लेने के हमायती नहीं है. तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर हुकूमत मिल बैठ के, चाहे इस इशू हो या मुख्तलिफ दूसरे इशूज़ हो, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी का राय लिया जाए मगर दूसरी जमातों को राय लिया जाए, तो हम उनको बेहतर एडवाइस दे सकते हैं. गुलबहार शेख, सिंध टीवी. यहाँ पे 20 साल पुराना ये देरीना मसला था, अभी नहीं पता. अब ये पाया तकनीक मंसूबा पहुँचा है और पीने के लिए पानी मिलेगा यहाँ के पास में. लेकिन मसला ये होता है कि जो भी स्कीमें चलती हैं उनकी रिपेयरिंग का मसला होता है या उसको मेंटेनेंस का मसला होता है, स्कीमें फेल कभी हो जाती है. तो अब ये इतना बड़ा खर्चा हुआ है, तो इसको कैसे रन किया जाएगा? पब्लिक हेल्थ की संभालेगी या मकामी जिसको इंतजाम है इसको देखेंगे? मैं संभालूँगा और बाकी मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत से काम निकलवाना तो बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अब मुझे भी थोड़ा बहुत तजुर्बा हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला हम ना सिर्फ इस मंसूबा को चलाएंगे. मेरा ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने अवाम को किसी न किसी तरीके से पीने के साफ़ पानी या इसकी मंसूबा की सूरत में, मुख्तलिफ़ मंसूबे की सूरत में पहुँचा दूँ. मैं जानता हूँ और आपको भी मालूम है कि किस तरीके से आपको अपने जो जायज़ हक़ है NFC अवार्ड के मुताबिक, आपको किसी एक बार भी आपको वो पूरा शहर नहीं मिला है. तो आप अपनी, तो इसको आप अगर कंपेयर करें किसी भी बिज़नेस से या किसी भी इदारा से, कि अगर आपका जो इनपुट है वो पूरी तरीक़ा से